Hello friends, I welcome all of you to the today's current affairs series where we will be doing today the seventh part of this series. Which part? Seventh part of this series. We have already covered six parts and the current affairs which we are covering here in this class, the reference for this is Eduteria magazine which has been released for Jan 2023 to June 2023. Okay, so in last class what we covered? We covered union budget, certain important points of the financial year 2023-2024. Okay, so the last point in the union budget what we had completed the session with was the what were the focus areas of the budget, like Saptarisi. Seven priorities of this budget were Saptarisi. So in that seven priorities, what were there? I will just make you revise those seven priorities of union budget. The first one is inclusive development. Second one is reaching the last mile. Third one, infrastructure and investment. Fourth one, unleashing the potential. Fifth one is green growth. Sixth one is youth power. And the seventh one is financial sector. Okay. So the first one is inclusive development. Then the second one is reaching the last mile. Third one is infrastructure and investment. Fourth one is unleashing the potential. Fifth one is green growth. Sixth one is youth power. And the seventh one is, and the final one is financial sector. These seven priorities of union budget 2023-2024 we covered last session, but we didn't read it in detail, only these listings we read. So today we will cover them one by one, and the first one will be inclusive development. Inclusive development, that what steps will government will take to ensure the inclusive development in this financial year. Before we move with this inclusive development priority of union budget, in the last session I had asked you some questions, and in the previous session also I had asked you some questions for which the answers were pending. So I'll give you answers for those questions, and then we will start with the inclusive development प्रायोरिटी इन द यूनियन बजट, उसका डिटेल डिस्कशन हम उसके बाद करेंगे. ठीक है. ओके. सो लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा क्या था, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रिवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. इन चार टाइप के डेफिसिट में बेसिक डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअली इनका मीनिंग क्या है इन डेफिसिट का, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि रिवेन्यू डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रखा है, तो 2.9% ऑफ जीडीपी. देन इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने इस बार कितना रखा है, तो 1.7% ऑफ जीडीपी. फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.9% ऑफ जीडीपी. प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट 2.3% ऑफ जीडीपी. एंड फिस्कल डेफिसिट में जो टारगेट 5.9% रखा गया है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में ये भी टारगेट रखा है कि 2025 to 26 by this financial year government will try to achieve the fiscal deficit, reduce it as much as possible till 4.5% of GDP. तो ये टारगेट है गवर्नमेंट का बाय दिस फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का. ठीक है, फाइन. तो इसमें क्वेश्चन मेरा बेसिक क्या था कि इन चारों डेफिसिट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर देती हूँ. रिवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग होता है
रिवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है अपार्ट फ्रॉम रिसिप्ट, उसको जो रिवेन्यू रिसिप्ट आते हैं और रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही है रिवेन्यू डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स उनके इनकम से एक्सीड कर रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज रनिंग इन डेफिसिट मोड. Government is running in deficit mode, and any kind of deficit tells us about the financial health of economy of any country. Okay, तो अगर revenue deficit पॉजिटिव आ रहा है किसी कंट्री का, that means that government is spending more than what it's earning through the receipts, revenue receipts. Okay, then the next one is effective revenue deficit. इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, फिर अगर रिवेन्यू डेफिसिट डिफरेंस है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का और रिवेन्यू रिसिप्ट का, तो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए आप अगर रिवेन्यू डेफिसिट में से अगर आप माइनस कर देंगे जो ग्रांट्स दिए जाते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो ये माइनस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका ये कहना है इस डेफिसिट के अनुसार कि जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है उसमें सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आप जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं कैपिटल एसेट को बनाने के लिए, उसको भी आप कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप उसको कंसीडर करेंगे तो डेफिसिट ज्यादा दिखेगा। बट अगर कोई कैपिटल बन रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको बना रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है, सपोज कोई रोड रेलवे जो भी बना रही है, क्या उसका टाइमलाइन जस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर होगा? क्या रेस्ट ऑफ द ईयर गवर्नमेंट विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट? पब्लिक तो नेक्स्ट 4-5 ईयर 10 ईयर्स उसके बाद भी इस कैपिटल से बेनिफिट लेती रहेगी, राइट? इसका भले ही डेप्रिसिएशन होता रहेगा बट स्टिल इट विल हैव द वैल्यू, सम वैल्यू रिमेनिंग, करेक्ट? सो इसी कारण कैपिटल क्रिएशन के लिए जो ग्रांट्स अप्रूव होते हैं उनको रिवेन्यू डेफिसिट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। माइनस कर दिया हमने इसको, तो जो बचा वो हो गया इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। दैट कि गवर्नमेंट इतना ही, इसको माइनस करने के बाद बोला जाए कि गवर्नमेंट इतना ही फंड से रिवेन्यू रिसिप्ट के तुलना में शॉर्ट रन कर रहा है। ओके, करंट गवर्नमेंट के लिए ये बात हो रही है, करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में। फाइन, सो द नेक्स्ट वन आपको ये भी समझना है कि देन व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट में आपको ये बोला जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस revenue expenditure, sorry, revenue receipts minus non-debt creating capital receipts, मीन्स जो डेट क्रिएट करने वाले कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, मीन्स नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। फाइन, इसको माइनस किया जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर में से। तो आप यहाँ बोलेंगे कि ऊपर तो बता रहे थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अब ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर टेक्स इनटू अकाउंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए ये बताया जा रहा है कि आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर
कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उनमें से ना केवल आप रेवेन्यू रिसिप्ट घटाइए बल्कि आप नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट भी घटाइए। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो कुछ ऐसे रिसिप्ट आते हैं कैपिटल रिसिप्ट जो डेट के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उनको नहीं कहा जा सकता कि दीज आर डेट्स, मतलब कि कर्ज जो गवर्नमेंट ले रही है उसके अंदर ये आएगा, वो ये नहीं है। जैसे कि बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग्स है, उनको इसमें से हमको एक्सक्लूड करना है क्योंकि those are not something government is earning, rather it's taking that, कर्ज ले रही है गवर्नमेंट, तो बोरोइंग्स को तो फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं, फाइन। लेकिन इसमें जो कैपिटल रिसिप्ट डेट कर्ज नहीं क्रिएट कर रही हैं, जैसे कि कोई असेट सेल कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उससे जो रिसिप्ट आया, उससे जो पैसा आया, वो तो कर्ज नहीं है ना, तो इसलिए उस पैसे को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, फाइन, करेक्ट, okay. So now the fiscal deficit is, in words if you say, nothing but difference between government expenditure and government total receipts except the borrowings, जो कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कॉमर्शियल बैंक से, ये सब से जब गवर्नमेंट कर्ज लेके कुछ अमाउंट फंड बोरो करती है, उनके अलावे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच का डिफरेंस जो है, उनको एक्सक्लूड करते हुए इनके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, राइट। नाउ यहाँ पे हमें एक और चीज और ध्यान रखना है कि ये तो फिस्कल डेफिसिट की बात हो गई, फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट, इफ वी सब्ट्रैक्ट फिस्कल डेफिसिट में से आप क्या करें, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कि प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में या उसके पहले के फिनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया होगा प्रीवियस ईयर में, उसका इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो वो इंटरेस्ट तो करंट फिनेंशियल ईयर में पे किया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट जो है, उस इंटरेस्ट को क्या हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मान लेंगे? तो वो बोला जा रहा है कि नहीं, आप उसको आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कंसीडर मत करिए, और उसको प्राइमरी डेफिसिट को ज्ञात करने के लिए फिस्कल डेफिसिट में जो कि ये इंक्लूडेड है इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसको आप माइनस करिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करिए, और जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, अगर गवर्नमेंट ने किसी को फंडिंग दी होगी, किसी को कर्ज दिया होगा, जैसे श्रीलंका, मालदीव, भूटान वगैरह को गवर्नमेंट लोन देती रहती है, तो उस लोन से जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, उसको ऐड कीजिए, तो दिस टोटल sum will give fiscal deficit minus interest payments plus interest receipts, this will be equal to primary deficit। इनको ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस तो आप समझ रहे होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू टेल दैट जो लास्ट फिनेंशियल ईयर का पेमेंट इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वो आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं कंसीडर कर सकते हैं। डेफिसिट से आप यही तो निकाल रहे हैं कि हाउ मच गवर्नमेंट इज लैकिंग, हाउ मच फंड गवर्नमेंट इज लैकिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिसिप्ट्स, अपने अर्निंग के तुलना में गवर्नमेंट कितना पैसा ज्यादा खर्च कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू ऑफ द लास्ट फिनेंशियल ईयर, नॉट ऑफ दिस फिनेंशियल ईयर, एंड दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू करंट फिनेंशियल ईयर, करेक्ट, ओके। एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट को आप जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट रिसिप्ट तो इस बार की, मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन दी है उसको ये किया जा रहा है, उससे हमें इंटरेस्ट मिल रही है, फाइन, ओके। Now, what I was saying, what was the next thing I had to explain? I explained you what and all. Just a second, give me a second.
I'll just erase them if you have learned them. Yes. So I explained you revenue deficit, effective revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. Primary deficit. इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट. ओके. इसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे. वो क्या थे? तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 74th रिपब्लिक डे जो है, 74th रिपब्लिक डे जो 2023 में 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो उसमें चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इजिप्ट प्रेसिडेंट इजिप्ट यस इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी. ये थे चीफ गेस्ट 74th रिपब्लिक डे के. फाइन. देन आई हैड आस्क्ड यू कि नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है उड़ीसा. देन आई हैड आस्क्ड यू कि लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम क्या है? लद्दाख न्यू ईयर फेस्टिवल, इसका नाम क्या है? कैन यू टेल मी? वो मैंने उस समय ही पूछा था, अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया. बट एनी हाउ द आंसर इज लोसार. लोसार फेस्टिवल इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख. लोसार से ही एक सिमिलर नेम आप सुनेंगे, लोसांग फेस्टिवल. लोसांग फेस्टिवल भी इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है. तो कहाँ? सिक्किम में. ये सिक्किम का न्यू ईयर फेस्टिवल है, सिक्किम्स न्यू ईयर फेस्टिवल. राइट. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू दैट गजमित्र नाम का एक इनिशिएटिव है, वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया था? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? और गजमित्र इनिशिएटिव लॉन्च किस लिए हुआ था? डू यू नो दैट? तो गजमित्र इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ह्यूमन एलिफेंट की कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए. इसलिए ह्यूमन एलिफेंट की कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए. ऑलराइट. सो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया था? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द गजमित्र इनिशिएटिव. गजमित्र इनिशिएटिव टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने गजमित्र इनिशिएटिव लॉन्च किया. देन आई आस्क्ड यू अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ये तो सब लोग को मालूम होगा, ईटानगर. ईटानगर. देन a related question I had asked you that अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन से प्लेस पे इंटर करती है? ब्रह्मपुत्रा जो कि मानसरोवर लेक जिसका ओरिजिन प्लेस है, मानसरोवर लेक जिसका ओरिजिन प्लेस है, वो कौन से प्लेस पे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से? तो उसका नाम है यांग यप पास. यांग यप पास यहाँ से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर. ब्रह्मपुत्रा रिवर और किस नाम से इंटर करती है? तो जब ये इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर. क्या? दिहांग रिवर. ऑलराइट. Then the next one I have asked you, next question was, next question what I had asked you that सिक्किम में ऐसा कौन सा माउंटेन है जिसका नाम
से उस स्टेट में एक नेशनल पार्क भी है, तो दैट इज नन अदर देन कंचनजंगा माउंटेन। ये माउंटेन पीक जो है ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो फर्स्ट कौन है आप सब जानते हैं, एवरेस्ट, और सेकंड केटू। कंचनजंगा की हाइट कितनी है माउंटेन पीक की, तो 8586 मीटर। माउंट एवरेस्ट का ऑल ऑफ यू नो 8848 मीटर and 8848 meter, and the K2 is 8611 meter. Fine. Okay. Then with this we complete the question answer session of the last sessions which were pending. Now we will just cover, since it's already I think it took much time, so we'll just cover today only the first priority of the budget from सप्तऋषि। यूनियन बजट का जो प्रायोरिटी है सप्तऋषि, उसमें से पहला प्रायोरिटी केवल हम लोग ये करेंगे, कवर करेंगे आज, क्योंकि has already taken time in the discussion of question answers. Okay. So let's move ahead to the first priority. The very first priority of Saptarishi, what I had told you in the start of the session कि inclusive development है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी तो सेट कर लिया, लेकिन इसको अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन्स भी तो सेट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। कैसे अचीव करेंगे, जस्ट इट्स अ जेनेरिक टर्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव करना है, इसको रियलाइज करना है, बट हाउ? सो द स्टेप्स आर हियर। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या काम करेगी गवर्नमेंट इस रिस्पेक्ट में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब हिंदी में अगर आपको जानना है तो उसका होता है समावेशी विकास। समावेशी, सबको इंक्लूड करते हुए, इवन वीकर सेक्शन को इंक्लूड करते हुए डेवलपमेंट, समावेशी विकास। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये क्या करेगी गवर्नमेंट, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड फॉर एग्रीकल्चर। देन एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, कृषि वर्धक निधि, नाम याद रहे, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड कृषि वर्धक निधि will be set up to encourage young entrepreneurs to open agri startups in rural areas, right? इसका मतलब हुआ कि ये फंड क्रिएट किया जाएगा, इसलिए तो जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री वगैरह खोलने की इच्छा रखते हैं, न्यू स्टार्टअप्स क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, तो वो ओपन एग्री स्टार्टअप्स में, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स जो होगा, कृषि रिलेटेड रूरल एरियाज में अगर वो खोलने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए दे वांट टू एंड दे आर फीलिंग लैक ऑफ फंड, तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की एस्टेब्लिशमेंट सेटअप की जाएगी। द हिंदी नेम इज कृषि वर्धक निधि, राइट? राइट। Okay, the next one is, it was announced to launch Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Program at a cost of 2200 करोड़। तो कौन सा प्रोग्राम है ये? आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसका आउटले क्या है? तो 2200 करोड़। कितना? 2200 करोड़ रुपीज। फाइन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द availability of disease free and quality to increase the availability of disease free and quality planting material for high quality horticulture crops। तो ऐसा मटेरियल प्लांट किया जाए जो जिसमें कोई रोग मुक्त हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसके वैसा चीज से, वैसे मटेरियल से प्लांट किया जाएगा, वैसे मटेरियल की अवेलेबिलिटी मीन्स इसको इजिली अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो फसल है, वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की उपज हो सके। फाइन। देन टू बूस्ट मिलेट्स, अ टर्म श्री अन्न was used by
फिनेंस मिनिस्टर। क्या मिलेट्स को, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इसी कारण यूनियन बजट में इसको एक खास प्लेस मिला है और मिलेट्स को इसको बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको एक नया टर्म दिया है जिसको बोला है उन्होंने श्री अन्न। क्या? श्री अन्न। फाइन। देन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्न। ये आपके लिए एडिशनल फैक्ट है, आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया जो है श्री अन्न का, मिलेट्स का प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है, मतलब फर्स्ट नंबर का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, एंड एक्सपोर्ट के मामले में ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद will be promoted as a center of excellence to make India a global hub of Sri Ann। तो इससे ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से जगह पे श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए, ग्लोबल हब बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से जगह के एक इंस्टीट्यूट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। तो वो है हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च। सेंटर ऑफ श्री अन्न का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद। फाइन। देन नेक्स्ट सेक्टर है इसमें एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री रिलेटेड फिशरीज। फिशरीज में अ न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना तो पहले से है, लेकिन इसका एक नया सब स्कीम विथ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ विल बी लॉन्च्ड। कौन सा? पीएम मत्स्य संपदा योजना का नया सब स्कीम लॉन्च किया जाएगा फिशरीज सेक्टर में, जिसका टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आउटले कितना है? 6,000 करोड़। 6,000 करोड़, ये नंबर्स याद रखने हैं आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स के, बिकॉज पीपीएससी might ask and it does ask. Okay. एग्रीकल्चर क्रेडिट इंक्रीज टू 20 लाख करोड़। तो अब इसमें भी 20 लाख के क्रेडिट का फैसिलिटी दिया जा रहा है। किसमें? एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर और ये बढ़ के 20 लाख हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइन। नाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में अभी तक क्या हुआ? एग्रीकल्चर एंड इसमें हस्बेंड्री का हो गया, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज। फाइन। अब इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्थ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के मामले में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? तो उस मामले में स्टेप्स हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये याद रखना आपको, कितना, हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड, ये यूनियन बजट में कितना का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये अनाउंसमेंट है 157। ठीक है। A mission will be launched to eradicate sickle cell anemia by year 2047। कौन से ईयर तक सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने का टारगेट